اور اگر آپ لوگ تیسری آیت سے، میں سارا نہیں پڑھوں گا، اگر آپ 5ویں آیت سے لے کر اگر آپ لوگ 28ویں آیت تک پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع المسیح ان باتوں کا ذکر کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور پھر اگر ہم لوگ 30ویں آیت سے پڑھیں تو یسوع المسیح اس میں 5 مثالیں دیتا ہوا نظر آتا ہے، تمثیلیں دیتا ہوا نظر آتا ہے. 24ویں باب میں اور 25ویں باب میں 5 تمثیلیں یسوع المسیح مختلف طریقے سے بتاتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کو اس میں انجیر کے درخت کی تمثیل ملے گی، آپ کو اس میں نوح کے طوفان کا ذکر ملے گا، آپ کو اس میں جو ہے وہ ملے گا کہ دیانت اور عقل مند نوکر کی مثال ملے گی 25ویں باب میں اور 24ویں باب میں. 10 کنواریوں کا ذکر ملے گا آپ کو، جس کے وسیلہ سے یسوع المسیح پربھو یشوع اپنے شاگردوں کو جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے. اور پھر آپ کو یہاں پر بار بار جاگتے رہو کا ذکر ملے گا، خبردار رہو، جاگتے رہو کا ذکر آپ کو ملے گا. اور پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھیڑوں کو بکریوں سے جدا ہونے کا ذکر آپ کو یسوع المسیح ہمیں بتاتا ہوا جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور پھر ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں تیاری کے لیے، میں ایک بات یہاں پر پڑھ دیتا ہوں جو 24واں باب اور اس کی 41 آیت ہے، جہاں پہ لکھا ہے بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا. بس جاگتے رہو، خبردار رہو. ایک بات میں بتا دوں، پتر بچوں ایک بات میں بتا دوں آپ کو، ایک بات میں بتا دوں آپ لوگوں کو، یسوع المسیح کے آنے کا بائبل مقدس میں نہیں پتا وہ کب آئے گا. ہاں اس کے آنے کا وقت کیا ہوگا یہ ہمیں پتا نہیں چلتا، لیکن وہ کیسے آئے گا، کیا ہوگا، کیا واقعات رونما ہوں گے، بائبل مقدس ہمیں ان کے بارے میں بتاتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن وہ کب آئے گا وہ کوئی نہیں جانتا. تبھی خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا. جاگتے رہو، خبردار رہو. رائٹ؟ چور کی مانے پربھو یشوع کب دو آئے گا؟ چور کی مانے، سب کے چور کی مانے، چور کی مانے آئے گا. اور چور نہیں بتاتا. رائٹ؟ چور اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کب چور آئے گا، رائٹ، ہم لوگ ساری رات جاگتے رہیں گے، وہ بھی بندوقہ لے کے، ہے نا، کہ چور آنے جائے. پربھو یسوع کہتا ہے میں چور نہیں مانے جاؤں گا. جاگتے رہو، خبردار. پہلا نقطہ میں یہ کہنا چاہتا ہمیں تیار رہنا ہے کہ یسوع المسیح کب آئے گا. یہ تیاری ہے. اگر ہم لوگ تیار نہیں ہوں گے تو پھر پربھو یشوع آ جائے گا، یسوع المسیح اس دنیا میں آ جائے گا اور انہی 5 گواریوں کی طرح ہم لوگ کیا رہ جائیں گے؟ پیچھے رہ جائیں گے. تیاری بڑی ضروری ہے. مجھے اور آپ کو جب ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یسوع المسیح کی دوسری آمد کب ہوگی، یسوع المسیح کب آئے گا، ہمیں اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم لوگ یسوع المسیح کے لیے جاگتے رہیں اور تیار رہ سکیں. تیاری کرنے کے لیے ہمیں جو کام کرنا ہوگا وہ کیا ہے؟ تیاری کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنے کے لیے ہمیں بس توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی. بس توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی. آپ کو پتہ ہے پربھو یشوع کا اور یسوع المسیح کا پہلا جو سرمن تھا کفرنہوم میں، پہلا سرمن ان کا یہی تھا، بس توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی. اسی کہنے ہیں پائی جگہ نہ رہے توبہ کرنا، پائی توبہ کراندے پھرتے ہیں. اور یسوع تو بڑا پائی کوئی نہیں سی. رائٹ؟ یسوع تو بڑا پائی کوئی نہیں سی جنہیں توبہ کرائی. اور یہ جو توبہ کا ورڈ ہے ریپینٹنس، بس توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت، جو ریپینٹنس ورڈ ہے یہ نئے عہد نامہ میں 63 ٹائمز آیا ہے. اس کا مطلب کہ یہ ورڈ جو ہے ریپینٹنس امپورٹنٹ ہے. یہ ورڈ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ مسیح یسوع کی تیاری کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تیار رہنا ہے. اور تیار
और अगर मैं और आप तौबा नहीं करेंगे, हम लोग यीशु अल-मसीह को रिसीव नहीं कर सकेंगे। बस तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाह क्या आ गई है, नजदीक आ गई है। और मैं कह रहा हूं कि उसको करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है। तौबा के लिए एक हिब्रू वर्ड है, तौबा के लिए एक हिब्रू वर्ड, और वो हिब्रू वर्ड कौन सा है? तौबा के लिए जो एक वर्ड है, तस्वा, हिब्रू वर्ड। क्योंकि जब तक आप हिब्रू को ना देखें या जुडाइज्म को नहीं देखें, आपको वचन की समझ नहीं आती। जब आप लोग तस्वा वर्ड देखते हैं, TS और UAVE, तस्वा का मतलब है ये कुर्बानी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये किसकी, गुनाह की कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और गुनाह की कुर्बानी पे पर्दा डालने के लिए उसको सैक्रिफाइस किया जाता था एनिमल्स को, ताकि गुनाह की कुर्बानी हो सके। Confession of sin, return to God, teswa, repentance in Hebrew word। लेकिन जब हम लोग ग्रीक वर्ड देखते हैं, वो है मेटनाय, तौबा के लिए वर्ड है मेटनाय, 63 टाइम आया है मेटनाय। मेटनाय का क्या मतलब है? अबाउट टर्न हो जाना, यानी अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं और जाते जाते आपको क्या होता है, खुदावंद यीशु अल-मसीह क्या करता है, आपको आवाज देता है, और आप उसी रास्ते से अपने आप को अबाउट टर्न करते हैं और यीशु अल-मसीह के रास्ते पे ले चलते हैं, और फिर आप उस रास्ते की तरफ कभी नहीं जाते। मेटना है, अबाउट टर्न हो जाना। तौबा का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो पछताते रहे अपने पुराने गुनाहों पर, क्योंकि प्रभु यीशु ने आपके लिए जान दी है, क्योंकि यीशु अल-मसीह ने आपके लिए क्या कर दिया है, अपने लहू को बहा दिया है। सो आपको सिर्फ और सिर्फ अबाउट टर्न होना है, ताकि आप यीशु अल-मसीह से क्या मिल सकें, आप तौबा करें और उसकी कुर्बत और नजदीकी में क्या कर सकें, आ सकें। मेटना सिर्फ तौबा ही काफी नहीं है, बल्कि हमें मसीह के साथ चलना भी जरूरी है। तौबा से कर लेने, किसी भी कन्वेंशन से जावांगे, राइट क्रूसेज से जावांगे, पैगाम सुनाया जा रहा है, प्रस्तुति हो रही है, तौबा भी कर लांगे, है ना। फिर बाहर निकलांगे, तौबा भूल जाओगे। वैसे ही जैसे हम लोग अपने वादे भूल जाते हैं, वो तौबा कायम रहनी चाहिए। और प्रभु यीशु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझ में कायम रहोगे और मैं तुझ में कायम रहूंगा, तो फिर तुम बहुत सा क्या ला सकते हो, फल ला सकते हो, फिर तुम बहुत सा फल ला सकते हो। तौबा करनी आसान है, लेकिन उसमें चलना मुश्किल है। बहुत सारे लोग तौबा करते और फिर क्या हो जाते, भूल जाते और चले जाते। मैं बताना चाहता हूँ, दो बातें मानने की हैं और दो बातें करने की। तौबा में दो बातें क्या है, मानने की है और दो बातें करने की है। मानने की क्या है, तौबा के कि मैं आदम की नस्ल से क्या हूं, गुनाहगार, ये मानना है। मैं आदम की नस्ल से, जहां से मैं पैदा हुआ, मैं गुनाहगार। दूसरी बात क्या मानने की है कि यीशु अल-मसीह के अलावा कोई आपको जो है वो निजात नहीं दे सकता, कोई निजात नहीं दे सकता यीशु अल-मसीह के। तो वही हस्ती है जिसने अपने लोगों से प्यार किया और उसने अपने जो है अपने आप को कुर्बान कर दिया और उसने निजात दी। ये दो बातें मानने की। करना क्या है तौबा के अंदर, तौबा के अंदर हमें क्या करना है, अपने गुनाहों से क्या करनी है, तौबा करनी है। और दूसरी बात क्या करनी है, यीशु अल-मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है, ताकि हम उसकी कुर्बत और नजदीकी में आ सके। मैंने यीशु अल-मसीह को कबूल किया जब मैं 19 साल का था। एक कन्वेंशन में मैं और मेरा भाई जोएल इकट्ठे थे और मैं कलाम को नहीं जानता था, मैं कुछ समझ नहीं थी। भाई मेरा रिपोर्टर था, वो रिपोर्टिंग करता था और हम लोग रिपोर्टिंग करने की वजह से हम लोग स्टेज के पास जाके खड़े हो गए और ये तस्वीरें बना रहा था, सब कुछ कर रहा था ताकि अगले दिन अखबार में दे सके। मुझे कलाम की कुछ समझ नहीं कि क्या कलाम सुना है, शायद बहुत से लोगों को भी याद ना आए, राइट। मुझे भी नहीं समझ आया कलाम की। एक बात समझ आई मुझे,
خادم نے صرف ایک بات کی آخر میں اینڈ میں کہ کبھی میں مر جاؤں تو یقین نہ کرنا کہ میں مر گیا ہوں، کیونکہ جو مسیح یسوع میں وہ مرتے نہیں بلکہ ہمیشہ جیتے رہتے ہیں۔ آمین آمین ہاللیلویا۔ وہ باتیں میرا پیچھا کرتی رہی اور ایسا کلام نے پیچھا کیا کہ وہ گھر کر گئی میرے اندر، اور میں نے یسوع المسیح کو اپنا آپ دے دیا، اور اس وقت سے میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور آج 22 سال ہو گئے کہ میں خدا کی کلام کی خدمت کرتا ہوں اور میں خدا کے پیچھے۔ دو باتیں کرنے کی ہیں، دو باتیں ہمیں ماننی ہیں، اور پھر توبہ کر کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسیح یسوع کے لیے تیاری جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ جو کلیسیا ہے وہ دلہن ہے، بائبل مقدس اس کو بیان کرتی ہے کہ جو کلیسیا ہے یہ دلہن ہے، اور ہمیں دلہن جو ہے وہ اپنے مالک کا کیا کرتی ہے؟ انتظار کر رہی ہے کہ وہ کس طرح سے کیا کر سکے، اس کو تیار کر سکے۔ اگر ہم لوگ افسیوں کا خط اگر ہم لوگ دیکھیں، افیشین چیپٹر 5، تو ہمیں اس میں ذکر ملتا ہے کہ کس طور سے ہم لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ مسیح یسوع کے لیے جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ اس کی قربت و نزدیکی میں اور بڑھ سکیں۔ یہاں پر آپ کو میاں بیوی کا سارا ذکر ملتا ہے۔ افیشین اس کی 5واں باب اور اس کی چیپٹر 5 اور اس کی 22 ورس سے ہمیں ذکر ملتا ہے، کیونکہ میں نہیں پڑھوں گا جو میاں بیوی کے تعلق سے ہے، لیکن جو میاں اور بیوی کا تعلق ہے، یسوع المسیح اپنا اور باپ کے رابطے کو سے جوڑتا کلیسیا کے ساتھ اس کو جوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ جیسے اے شورو اپنی بیویوں سے محبت رکھو، جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے کیا کر دیا؟ موت کے حوالے کر دیا۔ ہم لوگ دلہا کا انتظار کریں، اور دلہا کون ہے؟ یسوع المسیح۔ سب کہیں یسوع المسیح۔ یسوع المسیح۔ دلہا کون ہے؟ یسوع المسیح۔ اور میں اور آپ کون ہیں؟ ہم دلہن ہیں، رائٹ؟ میں اور آپ کیا ہیں؟ دلہن ہیں۔ وہ میری داڑھی ہے پھر بھی میں دلہن ہوں، رائٹ؟ میں کیا ہوں؟ دلہن۔ اور یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ، جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ اور پھر آخر میں 31ویں آیت میں اسے لکھتا ہے یہ بھید تو بڑا ہے لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوا نظر آتا ہوں۔ عزیزو، اگر ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں یسوع المسیح کے آنے کی، رائٹ، اور ہم لوگ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ یسوع المسیح کب آئے گا، رائٹ، وہ کب ظاہر ہوگا، تو پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں روز سنگھار کرنا ہے۔ دلہن سنگھار کرتی ہے، رائٹ، اور دلہے کا انتظار کرتی ہے، برات کا انتظار کرتی ہے۔ ہم لوگ سب دلہن کی مانند اپنے دلہا کا انتظار کر رہے ہیں، رائٹ، اور لکھا ہے کہ اس میں کوئی جھری نہیں ہونی چاہیے، رائٹ، اس میں کوئی بھی داغ نہیں ہونا چاہیے اور کوئی بے عیب ہونا چاہیے، تاکہ جب ہمارا پربھو، جب یسوع المسیح آسمان پر ظاہر ہو تو ہم لوگ اس کا کیا کر سکیں؟ استقبال کرنے والے۔ تیاری کے لیے بڑا ضروری ہے، اور ہمیں روز جو ہے وہ تیاری کرنی ہے تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کے قربت اور نزدیکی میں جو ہے وہ جا سکیں۔ اگر آپ لوگ یوحنا کی انجیل دیکھیں، جو ہم لوگ یسوع المسیح کی تیاری میں بات کر رہے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب، اور وہاں پر یسوع المسیح کے اپنے الفاظ ہیں، اور وہاں پر ہمیں امید نظر آتی ہے، اور وہ امید ہماری یسوع المسیح ہمیں دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، کیا کہتا ہے؟ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھے۔ پہلی بات میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ یسوع المسیح اپنے آپ کو خدا باپ کے برابر بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ ٹرینٹی کی بات ہے، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں
बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे वास्ते क्या करूं, जगह तैयार करूं। ये यीशु अल मसीह ने खुद कहा, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे वास्ते क्या तैयार करूं, जगह तैयार करूं। और फिर सिर्फ जगह तैयार ना करूं, मैं आऊंगा और फिर तुम्हारे साथ तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हें अपने साथ क्या करूंगा। यीशु मसीह हमारा आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर का नाम सुना है? वो बिल्डर है जो हमारे घर बनाने के लिए गया हुआ है। दुल्हन को उसने छोड़ा यहाँ पर और कहाँ पे गया, ताकि वो हमारे लिए क्या बनाए, वहां पर घर बना सके, राइट। और फिर आए और अपनी कलीसिया को क्या कर सके, आकर उठाकर अपने पास ले जाए। लेकिन वो कैसा घर बनाने के लिए लेकर गया, किस किस्म का घर वो बना रहा है बेटा, जब तक यीशु मसीह नहीं आया। वो कौन सा घर बनाने के लिए गया हुआ? यीशु मसीह ने यहाँ पर हमें उम्मीद देता हुआ नजर आता है। तुम्हारा दिल ना घबराए। हम इस दुनिया में किसी भी हालत में रहते हैं, किसी भी तरह से अपनी जिंदगी बसर करते हैं, तुम्हारा दिल ना घबराए। तुम खुदा पे ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, क्योंकि बाप के पास जो है वो बहुत से मकान है। अगर ना होते तो मैं तुमसे कहता। आइए देखते हैं मकान कौन से। मुकाशवा उसका 20 बाप आप लोग देखें, और आप लोग देखें कि वो मकान कौन सा है जहां पर यीशु मसीह के है। उसने कहा मैं जाके जगह तैयार करता। वो मेरे और आपके लिए जगह जो है वहां पर तैयार की गई है, ताकि हम लोग आकर 21वें बाप को देखें। और आप 21वें बाप को देखें, मुकाशवा द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 को देखें। फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा था। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से और खुदा के पास से उतरते देखा, और उसकी कोई पढ़े, और उसकी क्या थी, दुल्हन की मानेद आरास्ता थी। कौन कौन है बाप? एक नया आसमान को उसने देखा, राइट। और वो उस दुल्हन की मानेद आरास्ता था, जिसने अपने शोहर के लिए क्या किया हुआ था, श्रृंगार किया हुआ था, राइट, श्रृंगार के। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से कहते सुना, देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और उनके साथ सकूनत करेगा। उसके लोग होंगे, खुदा आप उनके साथ रहेगा, वो उनका बाप होगा, उनका खुदा होगा, और उनकी आंखों के सब आंसू क्या कर देगा, पहुंच देगा। पहली चीजें जाती थी, और जो तख्त पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं, राइट। और फिर उसने लिखा कि क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि ये हमारे लिए जो है वो यीशु मसीह गया ताकि ऊपर क्या करे, आसमान बना सके। अगर आप लोग 18वीं आयत देखें, इसमें इसी बात की 18वीं आयत देखें, और उसकी शहर पनाह की तमीर यश्ब की थी, और शहर ऐसे खालिस सोने का था जो शफाफ और शीशा की मानित हो। वहां पर हमने सुना है कि वहां पर क्या है, शीशे की सड़कें होंगी, खालिस सोने की सड़कें होंगी, राइट। ये प्रभु यीशु मसीह ये बिल्डिंग हमारे लिए बनाने के लिए जा रहा है, राइट। उसने मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए क्या तैयार करूं, ये जगह तैयार होगा, सोने का शफाफ शीशे की मानित होगा। उस शहर की शहर पनाह की बुनियादें हर तरह के जवाहिर से आरास्ता थी, राइट। और ये शहर ऊपर बना रहे यीशु मसीह जाने के लिए। कितने लोग जाने के लिए तैयार हैं, कितने लोग उस सोने की सड़कों पर फिरने के लिए तैयार हैं, कितने लोग चाहते हैं कि हम लोग तैयार होना चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि हम लोग यीशु जब आए और हम उसके साथ जो है वो बादलों पे इस्तकबाल करें और हम लोग आसमान पर उठकर उसके साथ जाने वाले बन सके। उसकी 23वीं आयत देखें जहां पे लिखा है, और उस शहर में सूरज और चांद की रोशनी की कुछ हाजित नहीं है, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है, और बड़ा का चिराग है उसका, बड़ा उसका चिराग है, और कौमें उसकी रोशनी में चले फिरेंगी, और जमीन के बादशाह अपनी शान और शौकत का सामान उसमें लाएंगे। और 28वें आयत को देखें, और उसमें कोई नापाक चीज, कोई शख्स जो घिनौने काम करता हो, राइट, कोई शख्स जो क्या करता है, घिनौने काम करता है, राइट, या झूठी बातें करने वाले, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
लेकिन लिखे उसमें कोई घिनौने काम करने वाला, झूठी बातें करने वाला, राइट। और क्या लिखा हुआ है उसमें, हर किस दाखिल ना होगा, हर किस दाखिल ना होगा, और वही जिनके नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखे हुए हैं। ये डिस्क्रिप्शन है। यीशु ने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे वास्ते जो है वो जगह तैयार करो। लेकिन घिनौनी बातें करने वाले, घड़ने वाले, झूठी बातें करने वाले उस जगह पर दाखिल ना हो सके। एक और बात यहाँ पे लिखा है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों, हरामखोरों, जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा, और ये दूसरी मौत होगी। अजीजों, हमें तौबा की जरूरत है, ताकि वो आसमान जो यीशु अल मसीह हमारे प्यार करता है, हम लोग उधर जाएं और सकूनत जो है वो उसके साथ कर सकें। और अगर हमने तौबा ना की, यीशु अल मसीह का देख मैं जल्द आने वाला हूँ, और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ। मैं बता रहा हूँ कि यीशु अल मसीह, एक बात फैक्ट है कि वो जल्द आने वाला है। कब आएगा वो मुझे और आपको पता नहीं, और उसके लिए हमें क्या रहना है, तैयार रहना है, और हमें रोज तैयारी करनी है, ताकि वो जब आए तो हम उसके साथ जो है वो बादलों पर क्या कर सकें, जो है वो सकूनत जो है वो कर सकें और उसके साथ रह सकें। यीशु अल मसीह, तौबा के वसीले से हम यीशु अल मसीह की कुर्बत और नजदीकी में जा सकते हैं। दूसरी आमद, यीशु अल मसीह की आमद के दो हिस्से होंगे। यीशु अल मसीह की आमद के कितने हिस्से होंगे? एक नादीदनी आमद होगी, और दूसरी कौन सी आमद होगी? दीदनी आमद होगी, राइट। और जो नादीदनी आमद है, जिसमें कोई जिंदगी उसे देख नहीं पाएगी, और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो चोर की मानेगा, राइट। और फिर खुदा के कलाम उसके 24वें बाब में मत्ती की इंजील में लिखा है कि जैसे नूह के दिनों में लोग खाते पीते शादियां करते और सब कुछ करते होंगे, इब्ने आदम क्या करेगा? आ जाएगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो नादीदनी आमद है और दीदनी आमद है, ये दो हिस्से हैं यीशु अल मसीह की आमद के, कि यीशु अल मसीह क्या आएगा। हम लोग सिर्फ नादीदनी आमद को देखते हैं, और फिर हम लोग दीदनी आमद पे भी जाएंगे कि क्या होगा दीदनी आमद। ये जो नादीदनी आमद है, और वो कभी भी यीशु अल मसीह आ सकता है। कितने लोग जानते हैं कि ये आखिर वक्त चल रहा है? क्या हम जानते हैं कि आखिर वक्त आने वाला है? आखिरी वक्त आने वाला है, या आखिर वक्त में हम लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं? कितने लोग जानते हैं कि हम लोग आखिर वक्त में जिंदगी बसर करें? अपने हाथ खड़े करें। कितने लोग जानते हैं कि हम लोग आखिर वक्त में अपनी जिंदगी बसर करें, या वक्त आने वाला? और कितने लोग समझते हैं कि यार आखिरी वक्त आने वाला? हाँ, कितने लोग जानते हैं कि हम लोग आखिरी वक्त आने वाला? आप कहते हैं आखिरी वक्त आने वाला, राइट। पतरस के खत में लिखा है, पहला पतरस का खत, और उसका पहला पतरस का खत, उसका पहला बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है, और उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से था, मगर ज़हूर आखिर जमाना में तुम्हारी खातिर हुआ। उसका ज़हूर आखिर जमाना में तुम्हारी खातिर हुआ, राइट। पहला पतरस, पहला बाब, फर्स्ट चैप्टर, और क्या कहते हैं 20वीं आयत। हम लोग आखिर जमाना में जिंदगी बसर कर रहे हैं, कोई और आखिर जमाना नहीं आएगा, क्योंकि यीशु अल मसीह के आने से, उसकी सलीब पर कुर्बानी देने से जो है वो आखिर जमाना उस वक्त से शुरू हो चुका है। तभी तो यीशु ने कहा कि मैं चोर की मानद आने वाला हूं, मैं जल्द आने वाला हूं। अपने आप को तैयार करें ताकि मैं जो है वो आ सकूं और तुम्हें लेने के लिए जा सकूं। यीशु अल मसीह, हम लोग आखिर जमाना में क्या कर रहे हैं? अपनी जिंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं।
आप जब आप मत्ती की इंजील देखते हैं, मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब, और हमें वहाँ पर जिक्र मिलता है मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब, और हमें और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगजीदों की खातिर क्या किए गए हैं, वो दिन घटाए। राइट, अगर वो दिन क्या न किए जाते, घटाए ना जाते, तो वो कोई बशर ना बचता, मगर क्या है कि वो जो है बरगजीदों की खातिर वो दिन क्या किए गए हैं, घटाए। ये जो आयत लिखी गई है कि बरगजीदों की खातिर दिन घटाए गए, ये ट्रिबुलेशन के दौर की है। आप इसे मिक्स अप ना करें, खुदा की यीशु मसीह की आमद को मिक्स अप ना करें। मैं बता रहा हूं कि दीदिनी आमद और नादीदिनी आमद है। हम लोग नादीदिनी आमद को देख रहे हैं, जब कोई आंख उसे नहीं देखेगी और वो चुप करके नरसिंगा फूंका जाएगा आसमान पर, और वो क्या होगा, इस दुनिया में आ जाएगा। एक और आयत मेरे साथ देखा, मत्ती 24वें बाब को मत छोड़ो, और खुदा के कलाम में एक और आयत में लिखा है, अगर उसकी आप 35 और 36 में आयत देखें, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। पढ़े इसको, मगर सिर्फ कौन जानता है, बाप। तो यीशु मसीह तो खुदा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ना फरिश्ते जानते हैं, ना बेटा जानता है, सिर्फ बाप जानता है। कौन जानता है, सिर्फ बाप। और यीशु मसीह आने वाला है, इसका मतलब बेटा नहीं जानता। राइट, बेटा नहीं जानता। जानता है कि नहीं जानता बेटा, बताएं मुझे। जानता है। यीशु मसीह जानता है, वेरी गुड, थैंक यू आशीष। और कौन कहता है कि यीशु मसीह जानता है कब आने वाला? कितने लोग जानते हैं कि नहीं आने वाला, वो कब आएगा, उसे पता है वो कब आने वाला? यस, राइट। लोग कंफ्यूज हैं, मुझे हाँ ना का जवाब दे। लिखे कि बेटा नहीं जानता, कलाम वचन कह रहा है कि बेटा नहीं जानता। राइट, अगर आप दूसरी कौमों से बात करेंगे, वो यही वर्ष उठाएंगे आपके लिए। राइट, वो यही वर्ष उठाएंगे और आपको कहेंगे कि आप कहते हैं कि यीशु मसीह डिवाइन है, वो डिविनिटी अपने अंदर रखता है, वो खुदा है, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि उसे अपने आने का वक्त नहीं मालूम है कि वो कब आएगा। और वैसे को फिर कमजोर हो जाएंगे, वो वाकईत से लिखे, आसमान के फरिश्ते भी नहीं जानते, ना बेटा जानता है, सिर्फ बाप जानता है, वो वाकई लिखा हो। राइट, क्या वजह है, सीखते हैं थोड़ी देर के लिए। राइट, आप उस वक्त तक मसीह के आने के नहीं समझ सकते जब तक आप यहूदी शादी को समझ न लें। आप कहेंगे पादी साहब कौन, यहूदी शादी, यीशु मसीह के आने, ये दोनों जिक्र आप कहां पे मिला रहे हैं? जब तक आप यहूदी शादी को नहीं जानते, आप यीशु मसीह के आने को नहीं जान सकते, क्योंकि यीशु मसीह दुल्हा है और मैं और आप उसकी दुल्हन है। और जब तक हम इस मिलाप को नहीं जानते, हम लोग यीशु मसीह के आने को नहीं जानते। मैं 3 बातें इसमें बताना चाहता हूँ, बहुत सारी डिटेल है इसमें यहूदी शादी में। पहली बात है कि यहूदी जो शादी करते थे वो सेवरल डेज की होती थी, 5 to 7 डेज की। राइट, और शादी से पहले उनकी एक रस्म होती है जिसे हम एंगेजमेंट करते हैं। राइट, जब रिंग को आया जाना, राइट, उसे कहते हैं बेथरोल, यहूदी शादी में कहा जाता है। राइट, बेथरोल कहा जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे। क्या साइन करते थे? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था, और उस कॉन्ट्रैक्ट साइन में क्या किया जाता था, ये बात उसमें मेंशन की जाती थी कि उसके आने के टाइम को जो है वो वाज़ेह नहीं किया जाता था, लेकिन ये कहा जाता था कि दूल्हा किसी भी वक्त क्या कर सकता है, वो आ सकता है। राइट, लेकिन अगर आप यहूदी शादी को देखें तो वहां पे 9 महीनों से लेकर 12 महीनों तक जो है वो टाइम पीरियड जो है वो होता था, जो जल्द का है कि मैं जल्द आऊंगा लेने के लिए। एक बात तो ये होगी, जो ये बेथरोल है जो बोल, राइट, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था, राइट, और ये करके वो चले जाते थे मियां बीवी, राइट, लेकिन वो उस वक्त से हस्बैंड और वाइफ क्या करते थे, कहलाते थे।
कोई हवाला किसी को याद आ रहा है? मरियम का और यूसुफ का। उसने कहा कि मेरा क्या है, मैं अपनी बीवी को अपने घर लाने से, और हम लोग ऐसी सोचने यार एक यदि शादी हो ही नहीं सी हले, ये बीवी क्यों वर्ड इस्तेमाल कर रहा है? समझ आ रही है आपको बात? ये बीवी वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहा है? वचन में बीवी का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, हालांकि उनकी सिर्फ मंगनी हुई थी, लेकिन वो बीवी का वर्ड इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है वचन में। पहली बात तो ये, वो हस्बैंड और वाइफ बन जाते थे लेकिन रिलेशनशिप में नहीं रहते थे, फिजिकली नो रिलेशनशिप, राइट। दूसरी बात मैं इसमें कहना चाहता हूं कि जब दूल्हा बारात लेकर आता था, जिन्हें ऐसी बारात लाके जाने दुल्हन देगा, राइट, और उसका जो ऐलान किया जाता था वो बाप को इख्तियार था कि वो ऐलान उसके लिए कर सके कि हम लोग बारात लेकर क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, और वो उस गांव में जाकर जो है वो ढोल बजाकर उसका जो है वो किया जाता था, जो है वो ऐलान किया जाता था कि हम लोग क्या हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं। और तभी जो 5 कवारियों की मिसाल, 5 कवारियां अक्लमंद और 5 कवारियां की जाए, क्यों हम लोग समझ नहीं पाते तमसील को? यहूदी शादी, और उस वक्त जो सहेलियां होती थी दुल्हन की, उन्हें पता था कि 9 महीने से लेकर 1 साल के अंदर कभी भी दूल्हा क्या कर सकता है, वो आ सकता है। और वो दूल्हा क्या करता था, दुल्हन के लिए मकान तैयार करता था। जैसे यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए क्या करूं, जगह तैयार करूं। ये भी याद रखें, जो है वो दूल्हा जाकर क्या करता था, जगह तैयार करता था ताकि वो बारात लेकर जाए और फिर अपनी दुल्हन को क्या कर सके, ला सके। तो दूल्हा जगह तैयार करता था। दूसरी बात, जो 5 कवारियां और 5 सुस्त कवारियां यीशु मसीह ने मिसाल दी, वो हर वक्त तैयार रहते थे, क्योंकि यहूदी शादी में कुछ पता नहीं चलता था कि वो अगर दूल्हा शाम के वक्त आ जाए, बाप ने डिक्लेयर कर दिया कि कल हमने जाना है, राइट, और वो अंधेरे में आते आते उनको अंधेरा हो गया, और वो क्या करते थे, गांव में पहुंच जाते थे और शादियाना बजाया जाता था, और वो इस बात को इनकार जो है वो इकरार किया जाता था कि दूल्हा क्या कर सकता है, वो आ गया। और तभी उनकी कुप्पियों में हमेशा वो तेल भर के रखती थी ताकि दूल्हा कभी भी क्या हो सकता है, नमूदार जो है वो हो सकता है। यहूदी शादी को समझना और यीशु मसीह के आने को समझना ये बड़ा ज़रूरी है। और जहाँ पे लिखे है, ना बेटा जानता है और ना जो है वो फरिश्ते जानते हैं, बल्कि कौन जानता है, बाप जानता है। यीशु मसीह के आने का जो है वो डिक्लेरेशन जो है वो बाप करेगा। कौन करेगा, बाप करेगा। और वो कैसे डिक्लेरेशन होगी जब यीशु मसीह आएगा, आए हम उसको देखते हैं कि किस तरह से डिक्लेरेशन होगी। इफ्सियों का खत देखें, अगर आप लोग डिक्लेरेशन को देख सकते हैं। इफ्सियों का खत कि यीशु मसीह, हम लोग दीदनी आमद ना दीदनी आमद की बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह के आने का कोई पता नहीं होगा कि यीशु मसीह कब आएगा। अगर हम लोग इफ्सियों का खत उसका 5 बाब उसकी 22वीं आयत को देखें, सॉरी पहला थिस्सलुनीकियों का खत और उसका 4 बाब उसकी 13वीं आयत, पहला थिस्सलुनीकियों का खत उसका 4 बाब और उसकी 13वीं आयत, ऐ भाइयों हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की माने जो नाउम्मीद है गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मसीह मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ क्या करेगा, ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावन के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि जो जिंदा हैं और खुदावन के आने को तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ें, क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार, मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगा के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे, और फिर जो हम बाकी होंगे बादलों में क्या करेंगे, उनके साथ उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावन का क्या कर सकें, इस्तकबाल कर सकें। और इस तरह हमेशा खुदावन के साथ क्या करेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को क्या दिया करो, तसल्ली दिया करो।
आमीन। इन बातों से एक दूसरे को क्या दिया करो? तसल्ली दिया करो। ये यीशु अल मसीह की नादीदनी आमद है। शादियाना बजाया जाएगा, लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। राइट, ये नरसिंगा आसमान पर बजाया जाएगा। और राइट, और यीशु अल मसीह जो है वो आ जाएगा और फिर वो अपनी लोगों को क्या करेगा? एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या करेगा? जमा करेगा। और फिर क्या करेगा? वो ले जाएगा, आसमान पर ले जाएगा। राइट, और उसकी दुल्हन अगर तैयार ना हो, अगर उसकी दुल्हन तैयार ना हो, वो लोग यहीं पर रह जाएंगे। किधर रह जाएंगे? और हम लोग ऐसे अपने जीजा में ढूंढाएंगे। राइट, कितने चले गए? राइट, और याद रखें कि जब यीशु मसीह आएगा, ट्रिबुलेशन का दौर उस वक्त शुरू होगा। यीशु मसीह के आने पर ट्रिबुलेशन का दौर शुरू होगा, मुसीबत का दिन शुरू होगा, और वो बड़ी मुसीबत का दिन आ गया। कैसे? मैं आपको बताऊं कैसे बड़ी मुसीबत है। यानी अगर कोई पायलट है जो जहाज चला रहा है और वो ईमानदार है, राइट, वो तो उड़ गया, उड़ते गया, कितने चला गया? आसमान, आसमान पे चला गया। राइट, और अगर कोई ट्रेन चला रहा है और वो जो है वो चलाने वाला क्या है? प्रभु यीशु का क्या है? मानने वाला है, और नरसिंगा फूंका गया है, और वो क्या होगा? आसमान पर चला जाएगा। जैसे ही नरसिंगा फूंका जाएगा, पहला करंथियों उसके 15वें बाब में लिखा है कि हम लोग बदल जाएंगे, और एक दम होगा, जैसे हम लोग पलक झपकते हैं उस तरह से हम लोग बदल जाएंगे, और हम लोग जलाली बदन में क्या हो जाएंगे? तब्दील हो जाएंगे। ये होगा, नरसिंगा फूंकते ही होगा। राइट, सब तब्दील हो जाएंगे। अगर आसमान पर जहाज चल रहे हैं, कितने जहाज रोजाना चल रहे हैं, अगर पायलट ईमानदार हुए सब चले जाएंगे। जहाज पूरी दुनिया में घिर रहे होंगे, ट्रेनें पूरी दुनिया में, गाड़ियां पूरी दुनिया में, और एक बड़ी मुसीबत का वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। यीशु अल मसीह का आना इस दौर से होगा। ये पहली आमद है उसकी। ये कौन सी आमद है? पहली नादीदनी आमद। नादीदनी आमद उसको कहा गया है कि ये पहली आमद है, और इसमें क्या होगा? वो अपने लोगों को उठाकर क्या करेगा? आसमान पर ले जाएगा, और उसके लोग चले जाएंगे। और ज़मीन पर क्या होगा? ज़मीन पर ट्रिबुलेशन का दौर शुरू होगा, जो 7 साल का अरसा है। कितने साल का अरसा है? लेकिन ईमानदारों की खातिर क्या किया गया है? घटाया गया। कौन से ईमानदारों की खातिर? मेरे और आपके लिए। हाँ जी, अरसा पे चढ़ जाना है। फिर केड़े ईमानदार हैं? जेड़े पीछे रह गए। पर पीछे दे केड़े रह गए? पीछे तो हो रहे हैं जिन्होंने ईमान ही नहीं लिया। राइट, जो तो ईमान नहीं लाए, अगर ईमान ले आए तो की चले जाते, तो फिर पीछे कौन रहे? राइट, वो 7 साल का अरसा जो कम किया गया है, ठीक है, अगर दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर भी बाकी ना रहता। ये अगर मिस्ट्री हम लोग कल खोलें तो बेहतर नहीं है। राइट, ताकि इसको हम लोग कल खोलेंगे, ताकि वो कौन से ईमानदार चले गए, हंसी तो सीखी होंगे, अपने यीशु नाल चले जाएंगे, और बाकी जो वापस रह गए, जहाँ पर मोर लगेगी, अबलीस की मोर, 666 की मोर, खाना नहीं मिलेगा। यकीन जानिए, आप जितने भी बाजारों में फिर लें, किसी को खाना नहीं मिलेगा, और जो भी जिंदगी जो है वो 666 की मोर लेगी, उसी को खाना दिया जाएगा। राइट, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी। राइट, और वो सारी बड़ी मुसीबत का दौर जो है वो शुरू होगा। ईमानदार भी मर जाएंगे। कौन से ईमानदार? मैं कल बताऊंगा कौन से ईमानदार मर जाएंगे। राइट, और ये 7 साल का अरसा सख्त मुसीबत का दौर जो है वो उसे कहा गया। ये पहली नादीदनी आमद है, हमें उसके लिए तैयार होना है। राइट, कितने लोग जाना चाहते हैं पहली आमद में? राइट, कितने लोग ने तौबा नहीं की? मुझे बता, कितने लोग आज तौबा करना चाहते हैं? क्योंकि तौबा करने के वसीला से हम लोग उसमें पहुंच सकते हैं। आमीन।
राइट, तौबा करने के वसीला से हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर जो है वो पहुंच सकते हैं। आइए हम अपने आप को खड़े हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ जितने भी खुदा